بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا وسلم عليك يا حبيب الله. پیرودائی سے آئے میرے دوستوں اور مرکزی انجمن تاجران کی مرکزی قیادت، آپ سب کو السلام علیکم. یاسین خان صاحب اور جتنے بھی پنڈال میں ہمارے قائدین، ہمارے انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم. اور مجھے یہ عزت بخشی کہ میں اس روڈ کا نگران ہوں اور روڈ کے اوپر میں کام کرواؤں. اور دوسری بات، شیخ ارسلان صاحب نے بھی بھرپور ہماری مدد کی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی میرے دوست دکاندار ہیں، تاجر ہیں، میں جنہوں نے ووٹ دی ہے، میں پچھلی مرتبہ میں نے کیا کہا تھا کہ ان کا شکریہ تو جنہوں نے نہیں ووٹ دی ان کا ڈبل شکریہ میں نے ادا کیا تھا. اسی اسٹیج کے اوپر کسی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس گرانٹ اتنی ہے کہ ہم یہ روڈ بنائیں گے. اسی اسٹیج کے اوپر کسی نے کہا تھا کہ یہ سیوریج کا کام میں کرواؤں گا، لیکن کوئی نہیں ہوا دوستو. اس کے بعد محمد حنیف عباسی صاحب اور شیخ ارسلان صاحب اور ضیاء اللہ شاہ صاحب جب ہمارے اس روڈ کے اوپر آئے ہیں، انہوں نے قیادت سنبھالی ہے. آپ کے سامنے یہ چند دن ہے، چند دنوں کی پریشانی ہے، چند دنوں کی بات ہے. انشاءاللہ جب یہ بات نکلے گی، یہ سڑک بنے گی، جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. بیٹھے ہوئے میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے مرکزی انجمن تاجران کی تمام ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے ان کی طرف سے راجہ نیاز صاحب کو، پھر بعد مہمانان گرامی حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام پیر طریقت جناب سجادہ نشین پیر عیدگاہ شریف پیر نقیب الرحمان صاحب تشریف لانے والے ہیں. کچھ ہی دیر بعد مہمانان گرامی بھی تشریف لائیں گے. میرے محترم بھائی ملک شاہد غفور پراچا صاحب، میرے محترم بھائی طارق جدون صاحب، میرے محترم بھائی یاسین خان صاحب، میرے محترم بھائی شیخ ارشد صاحب، میرے محترم بھائی راجہ ظفر اقبال صاحب، میرے محترم بھائی حاجی سیف اللہ صاحب، ساجد بٹ صاحب، اور آج کی اس تقریب کے دولہا راجہ نیاز صاحب، ان کی پوری ٹیم، پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں منظمین کا کہ جنہوں نے اس فنکشن کے موقع پر مدعو کیا. تاجر کسی بھی معاشرے میں اس کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ٹیکسز سے کاروبار زندگی، کاروبار حکومت چلا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ہی شہر کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ہی اپنی ترقی کے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ہمارے بڑے بھائی جناب محمد حنیف عباسی صاحب، ملک شاہد غفور پراچا صاحب، صدر انجمن تاجران میرے بھائی جناب ضیاء اللہ شاہ صاحب، شیخ ارسلان صاحب، طارق جدون صاحب، ساجد بٹ صاحب، ہمارے چیئرمین صاحبان یاسین خان صاحب، شیخ ارشد صاحب، پیر مشرف صاحب، شیخ آصف ظہور صاحب، سیفی کھوکر صاحب،
आमर मीर साहब, मकबूल अहमद खान साहब और दीगर जितने दोस्त बाप यहाँ तशरीफ़ लाए, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसरन बात करूँगा और तफसीली बात अली भाई साहब आपके सामने करेंगे। मैं सबसे पहले चूँकि आज की जो तकरीब है राजा नियाज साहब की अलबरदारी और उनकी पूरी टीम की अलबरदारी की है, तो स्पेशली जब वो बिला मुकाबला बने हैं तो ज़्यादा दिल करता है कि उनको ज़्यादा मुबारकबाद पेश करें। मेरे बड़े भाई हनीफ अब्बासी साहब, राजा हनीफ साहब, ज़ियाउल्लाह शाह साहब, मेरा बड़ा भाई शाहिद गफूर पराचा साहब, तारक जदून साहब, शेख अरशद साहब बैठे हैं हमारे साथ, यासीन खान साहब बैठे हैं और सामने मेरे ताजर भाई इस हॉल में जितने भी बैठे हैं सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो यहाँ पर असगर माल चौक की यूनियन के जो राजा नियाज साहब हैं, जो अपनी पूरी टीम के साथ बिला मुकाबला मुंतखब हुए, मैं इन सब को दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। आपके सामने सियासत तो दूर की बात है, अपनी शक्ल दिखाने की भी इंशाअल्लाह ताला जुर्रत नहीं होगी। इस तरीके से बेलौस खिदमत की, फिर क्या हुआ? इस शहर में बहुत से लोग सियासत करते हैं, मैं जरा नजदीक की बातें करता हूं। 2013 में एक शख्स बड़ी साजिशों के बाद, मेरे पे मुकदमात बनाने के बाद 9000 वोटों से मुझसे जीत गया, वो बड़ी गाला चला गया। उसके बाद उसने रावलपिंडी का रुख नहीं किया। दूसरा शख्स 2018 में मुझे जेल में भेज के उम्र कैद दिला के F6 और F7 में जाके सो जाता है और पिंडी का सपूत कहलाता है, जिसके इर्द गिर्द 50-60 लोग चलते हैं, मुसल्ला चलते हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं अपने लिए नहीं आया, ना वोट मांगने के लिए इस वक्त आया हूं। इस वक्त मैं ताजरों की एक तकरीब में शिरकत के लिए आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चेयरमैन मुंतखब करें, MPA मुंतखब करें, MNA मुंतखब करें, लेकिन मेरे दोस्तों उसको मुंतखब करें जिस तक आपकी रसाई आसानी के साथ हो जाए, जिसके पास पहुंचने के लिए ना गाड़ों से गुजरना पड़े, ना कुत्तों से गुजरना पड़े, ना उसके घर की दीवारें बड़ी हो, बल्कि वो आप जैसा हो और आपके मसाइल को सुनकर इस तरह हल करे जैसे उसका जाती मसला होता है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, वाज़ेह मिसालें हैं। 2003 में हमने इलेक्शन जीता 60,000 वोटों से, 2008 में हमने इलेक्शन जीता 70,000 वोटों से, यानी लीड से। 2013 की बात बता दी, 2018 को लड़ने नहीं दिया गया। 13 से 18 तक मैं MNA नहीं था, मैं MPA नहीं था। इस रावलपिंडी की तकदीर बदल दी। किसने बदली? मुझे हमेशा से शौक था वेलफेयर का। हम फ्री अद्वियात लेके डिस्पेंसरियां चलाया करते थे, लेकिन मेरे दोस्तों 2008 में मुझे शहबाज शरीफ मिल गया। अब मैं कोई उसकी खुशामद के लिए यहाँ नहीं आया, ना मैं उसको, मेरे तो बुजुर्ग भी, रूहानी पेशवा भी यहाँ बैठे हैं, मेरे तो वो एक सियासी सदर भी हैं, लीडर भी हैं। मैं वो बात करूंगा जो यहाँ मौजूद है। मैं ना ये कहूंगा अलफ लैला की कहानी सुनाने में नहीं आया, आप सब मेरे से समझदार हैं। मैं ऐसी बात करके चला जाऊँ, आप कहेंगे कि ये कैसा शख्स था, कितने बड़े बड़े झूठ बोल के गया है। इसका कद तो 5 फुट 8 इंच था, लेकिन गुफ्तगू इसकी देखें टार्जन वाली थी। नहीं मेरे दोस्तों, 2008 में वो शख्स मुझे मिलता है। इस रावलपिंडी में एक नया हॉस्पिटल नहीं था, पूरे पिंडी में 75 साल से। बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल जैसा अस्तबल मौजूद था, होली फैमिली जैसा हॉस्पिटल मौजूद था, कोई नया हॉस्पिटल नहीं था। अल्लाह के फजलों से गुजरते गुजरते वो हॉस्पिटल बना के जाता था, गुजरते गुजरते। आज रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पार्टियों से बालातर होकर, सुबाइयत से बालातर होकर, यानी केपीके के 40% लोग
उस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये है हमारी कामयाबी। आए मुकाबला करें ना, मुकाबला गालियों से मैं नहीं करूंगा आपके साथ, गंदे लताइफ से मुकाबला नहीं करूंगा, गंदी जुबान के साथ मुकाबला नहीं करूंगा। आए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का मुकाबला करते हैं। फिर क्या हुआ, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बना। आज जो 4 साल से बंद था, आते ही अल्हम्दुलिल्लाह मरी रोड के ऊपर, 100 कनाल के ऊपर, ये भी चलते चलते बना था। इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल हमारे हुकूमत बनने के बाद, ये अल्लाह जो मेरे मुंह से निकालता है उसको पूरा भी वही करता है। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर इस पे किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा अल्लाह के फजल से। ये सब फ्री होंगे जैसे RIC में फ्री होते हैं। जब हम 2003 में पीर साहब MNA बने, आपकी रोड पे गार्बेज के ढेर होते थे। हमारे सेटेलाइट टाउन में गार्बेज के डोक गाबा, डोक कलाखान। आप आज इस वक्त मेरे साथ जाए रात के टाइम, ना ढोक खब्बा में गार्बेज होगा, ना ढोक कलाखान में होगा, ना सेटेलाइट टाउन में होगा। वजह क्या? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लेके आए। उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आज रावलपिंडी को इस्लामाबाद से ज्यादा साफ सुथरा बना दिया। खेल के मैदान बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, रोड बना दिए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। कॉलेज और स्कूल में जो कमरे मौजूद नहीं थे, कमरों का ढेर लगा दिया। ये नहीं देखा कि मुझे तो लोगों ने मुंतखब ही नहीं किया था। खिदमत जो होती है वो हदूद और कुयूद की पाबंद नहीं होती। पेश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ नियाज साहब को अपनी कामयाबी पर। और फिर अभी हम खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहे थे शायद गफूर पराचा साहब के बाद। बहुत ही खूबसूरत इंसान है, हमारे शहर की रौनक है। और फिर जनाब हनीफ अब्बासी साहब को उनका एक जुमला बड़ा ही खूबसूरत था। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन ऐलान होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत में दाखिल हो जाए, तो बहुत सारी मखलूक भाग पड़ेगी। तो पूछने वाले पूछेंगे कि ये तो तुम क्यों भाग पड़े हो? और उन्होंने कहा, वो अर्ज करेंगे कि आपने सुना नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर सिर्फ आपका नाम मुबारक पुकारा जाएगा कि आप दाखिल हो जाए। आपका नाम लेते हुए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आप सब के लिए, कि आगे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो कहेंगे कि क्या आपने सुना नहीं कि नाम दिया गया है कि दाखिल हो जाए? तो कहेंगे वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, जिस नाम के साथ भी ये नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, उनके लिए दरवाजे खोल दो इस नाम के सदके। तो सलाम पेश करता हूँ आपकी अकीदत को मदीना पाक के साथ, आपके नाम नामी को अपने साथ इस अंदाज से बयान करते हुए यकीनी तौर पे आप हमारे शहर की इज्जत की है। एक पनाह आका अलैहिस्सलाम के साथ मेरा और आपका जो रिश्ता है, जैसे आप भी बैठते हैं तो आपकी ज़ुबान पे मदीना पाक की बात होती है, ताजदार हरम की बात होती है, और आपका पुख्ता ईमान और यकीन है कि जो कुछ मिलता है दरबार रसालत महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये यकीन ही होता है कि अब्बासी साहब जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तों से नवाजे। इस वक्त शहर के मुअज़्ज़ज़ीन स्टेज पर होने को खोज है, आप सब बैठे। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके आप सब की इज्जतों में इज़ाफ़ा फरमाए, ढेरों रहमतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे, और हमारे मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से निजात अता फरमाए, कर्ज से निकाले, अक़वाम आलम में मदीना पाक का सदका एक इज्जत वाला मकाम अता फरमाए। मुझे ये कहने में कोई हार नहीं कि अब्बासी साहब जब बात करते हैं दिल से करते हैं, और जो कहते हैं ज़ुबान से निकालते हैं, अल्लाह की मदद भी फरमाता है और कामयाबी भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों रहमतों बरकतों से। मैं नाम लिया अपना, सीधा देखिए सीधा, मैं अपना अल्लाह ताला की हजूर हलफ उठाता हूँ कि मैं अंजुमन ताजरान अस्कर माल रोड
ईदगाह तक 4 नंबर चुंगी रावलपिंडी का वफादार ओहदेदार रहूंगा और अंजुमन के मफादात को अपने मफादात पर कुर्बान नहीं करूंगा। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर अहद करता हूं कि ताजरों की भलाई और बेहतरी के लिए तमाम तर तवानाई के साथ काम करूंगा। ताजरों के मसाइल हल कराने में अपनी बेहतरीन कोशिशें सर्फ करूंगा। तंजीम को गैर सियासी रखकर खिदमत सर अंजाम दूंगा। मरकजी सदर की दिलो जान से मामनत करूंगा और बामी मुशावरत से ताजरों के मसाइल हल करने में मदद करूंगा। ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए मुस्बत तजावीज़ देता रहूंगा। मुल्क की सालमियत व बका के लिए सलामती व बका के लिए अपनी भरपूर तवानाइयां सर्फ करूंगा। इख्तलाफ की सूरत में किसी साजिश का मुर्तकब नहीं होगा, न परवान चढ़ने दूंगा। अपने अहद को पूरा करने में अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आखिर में वही बात जो मेरे भाई शेख असलान हफीज साहब ने लिखी, तमाम दुकानदार आप सब के लिए बराबर